سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ ایک ہرا بھرا اور آباد گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں 500 کسان زندگی بسر کرتے تھے۔ اس گاؤں کا زمیندار بڑا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ شخص تھا۔ یہ اپنے کسانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنے کسانوں سے خوب سخت کام لیتا اور انہیں مزدوری اتنی کم دیتا کہ وہ بیچارے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ بیچارے اس کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے اور جیسے تیسے زندہ تھے۔ اتنا کم کھا پی کر انہیں کھیت میں کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا اور نہ ہی ان کا جی خوش ہوتا، مگر بیچارے کیا کرتے، اور کوئی جینے کا سہارا بھی نہیں تھا۔ صبر کرتے اور زندگی کے دن پورے کرتے۔ زمیندار کی طرح اس کی بیوی بھی موٹی تازی سان کی طرح پلی ہوئی تھی۔ شوہر کے ساتھ خوبصورت مکان میں دن بھر رینٹتی رہتی۔ لوگ تو بیچارے کھیتوں میں کام کرتے اور یہ دونوں میاں بیوی ہر وقت پیٹ پوجا کرتے رہتے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹھونس ٹھانس لگی رہتی۔ دن میں کئی بار ناشتہ کرتے۔ غریب کسان بیچارے ایک خشک روٹی اور پیالہ بھر پانی پر گزارا کرتے اور صبر کرتے۔ ایک دن اتفاق سے کیا ہوا، نینوش نامی ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، یہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ طبیعت کی بہت نیک اور بہت محنتی تھی۔ جب اس کی ماں کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتی تو یہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیت میں کام کر رہی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یہ خشک روٹیاں چشمے پر لے جاؤ اور انہیں پانی میں بھگو کر نرم کر لاؤ تاکہ ہم کھا پی کر دوبارہ کام کر سکیں، اور ہاں، اس خالی برتن میں پانی بھرتی لانا۔ لڑکی بولی، ابھی لاتی ہوں۔ لڑکی نے روٹیاں پانی میں بھگو کر نرم کر لی اور جب برتن میں پانی بھرنے لگی تو اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی، ارے پیاری بیٹی، میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی فقیرنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غم ٹپک رہا تھا۔ وہ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس وقت وہ بوڑھی فقیرنی بولی، بیٹی، یہ سوکھی روٹیاں مجھے دے دو، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، شاید میری جان بچ جائے۔ لڑکی اس وقت خود بھی بھوکی تھی اور اس کی ماں بھی سوکھی روٹیوں کے انتظار میں تھی، لیکن جب اس لڑکی نے اس بوڑھی فقیرنی کی حالت کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ روٹیاں بوڑھی عورت کے حوالے کر دی۔ فقیرنی نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں ایک دعا پڑھ کر تمہارے اس برتن پر دم کر دیتی ہوں، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو تم اس برتن کو مخاطب کر کے کہنا کہ اے خالی برتن، تو مجھے خوشحال کر دے۔ اس کے بعد تم اپنا بایاں ہاتھ اس برتن میں پھیرنا، تم دیکھو گی کہ یہ دودھ اور شہد سے بھر جائے گا، اور ہاں، یہ برتن اس وقت تک اسی حالت میں رہے گا جب تک تم دودھ اور شہد کھاتی رہو گی۔ جب تم چاہو کہ یہ دودھ اور شہد رک جائے تو تم اس سے کہنا، بہن بہن، بان بان، بھر گیا اونٹ بھرے دکان، اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اس برتن میں پھیرنا تاکہ دودھ اور شہد بند ہو جائے۔ تم جب تک اس برتن کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو گی تو یہ تمہارے کام آتا رہے گا اور تمہاری زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ وہ بوڑھی فقیرنی تو اتنا کہہ کر آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور وہ لڑکی اسی جگہ پر کھڑی کافی دیر تک اس بوڑھی عورت کو ادھر ادھر دیکھتی رہی، اور جب بوڑھی فقیرنی کہیں نہیں ملی تو اپنے آپ سے کہنے لگی کہ آج تو میری خیر نہیں، اماں میری خوب خبر لیں گی اور میری ہڈی پسلیاں توڑ ڈالیں گی۔ میں نے قصور ہی ایسا کیا ہے، جو سوکھی روٹیاں انہوں نے پانی میں بھگونے کے لیے دی تھی وہ میں نے ایک فقیرنی کو دے ڈالی، لیکن کیا کروں، اس بیچاری بوڑھی فقیرنی کا حال مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ خیر، اب تو جو بھی حال ہو، اماں کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی خالی برتن ہاتھ میں لیے کھیت میں اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ جب اس کی ماں نے روٹیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سارا حال اپنی ماں کو کہہ سنایا۔ یہ سن کر ماں کو بڑا غصہ آیا اور بولی، ارے نادان لڑکی، تم نے آج کی خوراک ایک مکار بوڑھی فقیرنی کو دے ڈالی اور اس کے بدلے میں لائی تو کیا، وہ 4 جھوٹے الفاظ۔ اب تو ہی بتا کہ خالی پیٹ ہم کیسے کام کریں گے۔ لڑکی بیچاری نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کی ماں غصے میں چلا کر بولی، اب خاموش کیوں بیٹھی ہے، اس خالی برتن سے دودھ اور شہد کیوں نہیں نکالتی؟ اس کی ماں نے لڑکی کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کہا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس بوڑھی فقیرنی کی بات یاد آ گئی اور وہ اس خالی برتن کے قریب جا کر بولی، اے خالی برتن، مجھے خوشحال کر دے۔ لڑکی کا اتنا کہتے ہی اچانک اس خالی برتن کے اندر سے سفید بالائی اور شہد نکلنے لگا۔ پھر اس کی ماں نے چمچہ لے کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی لڑکی پر پیار آ گیا اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بولی، پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دے، مجھے تیری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے یقین آ گیا، تو واقعی ہی بہت سچی اور بہت اچھی بیٹی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے زندگی میں کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔
आज उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद लड़की ने उस बर्तन से मुखातिब होकर कहा, बैन बैन बान बान, भर गया ऊंड भर गई दुकान। इतना कहकर फिर अपना दाया हाथ भी 3 बार उस खाली बर्तन में फेरा और उसके बाद बालाई और शहद निकलना बंद हो गया। और फिर उन्होंने उस खाली बर्तन को एक तरफ रखा और काम करना शुरू कर दिया। सूरज गुरूब होने तक वो अपने काम में मसरूफ रहे। फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन उठाया और माँ के साथ अपने घर का रास्ता लिया। आज उन्हें वो अपने गांव वाला छोटा सा मकान और रौनक नजर आ रहा था। घर पहुंचकर उसकी माँ ने अपनी 2 छोटी बेटियों को सोते से उठाया और वो सब उस खाली बर्तन के करीब बैठ गईं। उस वक्त वो लड़की कुछ परेशान और गमगीन नजर आ रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? वो लड़की बोली, अम्मा कितने अफसोस की बात है कि आज ऐसे मौके पर हम अपने पड़ोसियों की खबर ना लें और अकेले ही बालाई और शहद को खाएं और उन्हें ना दें। आखिर वो भी कितने अरसे से सूखी रोटी पर ही गुजारा करते आ रहे हैं। अगर उन्हें ये चीज मिल जाए तो वो भी कितना खुश होंगे। माँ अपनी बेटी की इस रहमदिली पर बहुत मुतासिर हुई और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें भी जरूर शरीक करूंगी। इतना कहकर वो उसी वक्त उठी और अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर सबको कह आई कि तुम सब मेरे घर में आना, तुम सबको एक जरूरी बात कहनी है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि इस बात की सुन गुन वो जमींदार और उसकी बीवी ना पा लें कि मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर की खिड़की से सड़क पर नजरें दौड़ाते रहते हैं, इसलिए तुम सब बहुत होशियारी के साथ आना। पड़ोसियों ने वादा किया कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे पड़ोसी उनके घर में जमा हो गई और फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन एक मेज पर रख दिया और सारे पड़ोसी उसके गिर्द जमा होकर बैठ गए। फिर लड़की ने उस बर्तन को हुक्म दिया और फिर इसकी तामील में उस खाली बर्तन के अंदर से शहद और बालाई उबलने लगी। पड़ोसी जो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे, उनके घर में करीब आस पड़ोस के 100 लोग जमा थे। उन सब ने पेट भर कर दूध और शहद को खाया और फिर सब उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। अब इस जालिम जमींदार और उसकी बीवी की बात सुनो। ये जब पेट भर कर अपने घर में खाना खा चुके तो ये बैठे बैठे बेजार हो गए और ये घर की खिड़की खोलकर गली में नजरें दौड़ाने लगे। इन्होंने उस वक्त देखा कि कुछ साए एक घर की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से उस पेटले जमींदार के पेट में खलबली मची कि जरूर ये कोई खास बात है, बाहर जाकर देखना चाहिए। वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता और चुपके चुपके घर से बाहर आया कि कहीं कोई उसे देख न ले। फिर उसने देखा कि लोग एक एक दो दो करके उस मेजबान लड़की वाले घर में जा रहे हैं। अब तो इसे पूरा यकीन हो गया कि जरूर इस लड़की के घर में कोई खास बात हुई है। फिर ये अपने घर गया और छत पर चढ़कर उस लड़की के घर की तरफ वाली खिड़की को खोलकर उनके घर में झांकने लगा। उसने देखा कि खाली बर्तन मेज पर रखा हुआ है और आस पड़ोस का सारा मोहल्ला उनके घर में जमा है और उस खाली बर्तन के अंदर से बालाई और शहद निकल रहा है जिसे वो सब लोग मिलकर खा रहे हैं। ये सारा मंजर देखकर वो मोटा जमींदार वापस उल्टे पांव हुआ और अपनी बीवी से घर आकर बोला, अरे नेक वक्त, सुनती हो, तुम तो कहती थी कि वो पड़ोस वाली लड़की जो है वो बहुत गरीब है। मैंने तो वहाँ कुछ और ही देखा है, लोग वहाँ मजे मजे से बालाई और शहद खा रहे हैं। बीवी बोली, क्या वाकई ही? जमींदार बोला, हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। इसके बाद उन दोनों के दरमियान खिचड़ी पकने लगी कि आखिर कैसे उस बर्तन को हासिल किया जाए ताकि हम भी बालाई और शहद खा सकें। और उन्होंने फैसला किया कि रात को वो चोरों की तरह उनके घर में जाएं और साथ उसी तरह का एक खाली बर्तन भी लेते जाएं और चालाकी से उनके घर के अंदर से वो बर्तन उठा लें और ये दूसरा बर्तन उनके घर में रख दें। उस जमींदार की बीवी दिखने में तो वो मोटी भैंस की तरह नजर आती थी, लेकिन वो बहुत चालाक और होशियार थी। वो अपने शोहर से बोली कि सुबह आफताब के निकलने तक तुम सब्र से काम लो और फिर शाम के हो जाने तक अपने आप को किसी जगह पर छुपा कर रखो और यहाँ तक कि आस पड़ोस के सारे लोग उनके घर में जमा हो जाएं। फिर तुम छुपकर देखना कि उसके बाद वो लड़की और उसकी माँ उस खाली बर्तन के साथ क्या करती हैं। और हाँ, उनके मुंह से जो अल्फाज निकले तुम भी उन्हें याद कर लो ताकि हम भी उन्हें दोहराएं और फिर उसके बाद हम भी मजे से वो बालाई और शहद खाया करेंगे। दूसरे दिन आस पड़ोस के सारे लोग जब खा पीकर अपने अपने घरों में हुए तो जमींदार खिड़की से ताक लगाए बैठा रहा। लड़की ने आप थोड़े से जो अल्फाज कहे थे उन्हें भी याद कर लिया और फिर वापस घर आकर अपनी बीवी को भी याद करवा दिए। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी इंतजार करने लगे कि जब सारा गांव सो जाए तो ये अपने हाथ की सफाई दिखाएं। जिस वक्त उन्हें इत्मीनान हो गया कि सारा गांव सो चुका है तो उस जमींदार ने
वो नया बर्तन उठाया जो बिल्कुल उस दूसरे बर्तन से मिलता जुलता था। फिर वो उनके घर की तरफ चला और घर की पिछली खिड़की से उनके घर में दाखिल हो गया और मेज पर रखे उस खाली बर्तन को उठाकर उसकी जगह पर वो दूसरा खाली बर्तन रख दिया और वापस आकर वो खाली बर्तन अपनी बीवी के हवाले कर दिया। जमींदारनी ने उस खाली बर्तन को बड़े एहतियात के साथ तय खाने में छुपा कर रख दिया। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी लंबी तान कर सो गए। सुबह हुई तो वो दोनों मियाँ बीवी खिड़की से बाहर झांकने लगे। लोग खेतों में काम के लिए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की आधे से ज्यादा आबादी खेतों में जा चुकी थी और घर में सिर्फ जमींदार और उसकी बीवी ही रह गए थे। जमींदार ने उस खाली बर्तन को मेज पर रखा और अपनी बीवी के साथ मिलकर आप थोड़े को इस तरह से मुखातिब किया, ऐ खाली बर्तन मुझे खुशहाल कर दे। ऐसा कहकर उसने बायां हाथ उस खाली बर्तन के अंदर फेरा और देखते ही देखते उस खाली बर्तन के अंदर से बालाई और शहद निकलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगे। ये दोनों मुंह चलाने के आदी तो थे ही और दिन भर ये कुछ न कुछ खाते ही रहते थे। ये तेजी से बावर्ची खाने की तरफ लपके और एक एक चमचा हाथ में उठाया और जल्दी से आकर उसे खाना शुरू कर दिया और ये काफी देर तक दूध और शहद खाते रहे और इतना खा लिया कि इनका पेट फूल गया। आखिर ये बेहाल होकर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। जोहर के करीब इनकी आंख खुली तो इनकी जुबाई पर जुबाई आ रही थी और जिस्म टूट रहा था। इतने में एक ऐसा समा देखने में आया कि ये बेअख्तियार हंसने लगे। कमरे में रखी मेज और आधा फर्श बालाई और शहद से डूब चुका था। ये देखकर जमींदार और उसकी बीवी कहकहे लगाने लगे और इतना हंसे कि हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जमींदार की बीवी बोली, अरे मियाँ जी हंसी तो बहुत होली, अब आओ जल्दी से कमरे और इस मेज की सफाई कर दें। फिर दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी उस कमरे को साफ करने लगे। अभी उन्होंने आधा कमरा भी साफ नहीं किया था कि जितना हिस्सा वो साफ कर चुके थे। देखते ही देखते उससे भी दुगना कमरा बालाई और शहद से भर चुका था और यही हाल मेज का था। जिधर से शहद और बालाई साफ की थी उधर से भी दोबारा शहद और बालाई से भर चुका था। उस वक्त जमींदार को ख्याल आया कि कोई ऐसा तरीका हो कि साफ खोरे से ये शहद और बालाई रुक जाए। लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि जमींदार को वो शहद और बालाई रोकने का तरीका ही मालूम नहीं था। जितना ही दिमाग पर जोर देता उतना ही परेशान होता, कितने ही जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिर उस खाली बर्तन को एक मोटे कपड़े के साथ बांध दिया, लेकिन वो शहद और बालाई का बहाव वो अल्लाह का अज़ाब बन गया। शहद और बालाई का वो बहाव इस जोर से बढ़ा कि कपड़े की धज्जियां उड़ा दी। फिर उन्होंने उस बर्तन को उठाकर एक देग में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो देग भी शहद और बालाई से भर गई। फिर वो बर्तन उठाकर हमाम में ले जाकर रख दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शहद और बालाई ने हमाम का दरवाजा भी तोड़ दिया और वो घर के सहन तक आ गया। गर्ज के दोनों मियाँ बीवी के किसी तरह भी बनाने से कोई बात ना बनी। घर के सारे हिस्से भर गए। बावर्ची खाने से लेकर मुलाकात के कमरों तक सब जगह पर शहद और बालाई भरा हुआ नजर आता था और ये शहद और बालाई का सैलाब बढ़ता ही रहा। तंग आकर उन्होंने महल का दरवाजा खोल दिया और अब ये अनोखा सैलाब घर से निकलकर बागीचे में पहुंच गया और वहां भी कोई ऐसी चीज ना रही कि जहां पर शहद और बालाई ना पहुंची हो। आखिरकार ये शहद और बालाई दोनों मियाँ बीवी के गले तक पहुंच गई। इस वक्त उन दोनों मियाँ बीवी की हालत देखकर हंसी रोकना मुश्किल थी। वो जैसे तैसे करके घर से बाहर निकले और गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गली भी आधे से ज्यादा शहद और बालाई से भर चुकी थी। दोनों के जिस्म बहुत भारी थे, उनके लिए चलना भी मुश्किल था। वो दोनों इस कदर थक चुके थे कि कदम कदम पर हाँफने लगते। असर के करीब गांव की सारी गलियां शहद और बालाई से भर चुकी थी और फिर उस शहद और बालाई के सैलाब ने जंगल का रुख कर लिया। इस परेशानी के आलम में जमींदार और उसकी बीवी ने कितनी फरियादें की और मदद के लिए लोगों को पुकारा, मगर इस बेबसी के बावजूद वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जिनकी मदद करता। आखिर ये दोनों मियाँ बीवी हाथ पांव मारते जाते और इन दोनों के डूबने में कम ही कसर बाकी रह गई थी। अब उन दोनों माँ बेटियों का किस्सा सुनो। वो दोनों रोज के मामूल के मुताबिक खेत में काम करने के लिए पहुंच गई थी और जब खाने का वक्त आया तो लड़की ने वो नकली बर्तन सामने रखा और उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ बर्तन मुझे खुशहाल कर दे। और फिर अपना बायां हाथ उस खाली बर्तन में घुमाया। लड़की ने ये मंत्र और ये अमल कितनी ही बार किया लेकिन उस बर्तन पर कोई असर ना हुआ और ऐसे दिन के वक्त उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला। और जब शाम हो गई तो वो और दूसरे मजदूर एक एक दो दो करके गांव की तरफ चलने लगे। जब वो सब गांव के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि एक अजीब सा सैलाब है जो उनके पूरे गांव में बह चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक उन्होंने जमींदार और उसकी बीवी को उस सैलाब में फंसा हुआ देखा। फिर एक देहाती जो उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था
उसने आवाज लगाई, अरे ये तो शहद और बालाई का सैलाब है, अब तो अल्लाह की पनाह, अब क्या किया जाए। ये सारा वाकया देखकर वो लड़की सारी बात को समझ गई और अपनी माँ से मुखातिब होकर बोली, अम्मा, जमींदार ने हमारा वो बर्तन चुरा लिया है और उसकी जगह ये नकली बर्तन रख दिया है, इसलिए उस नकली खाली बर्तन ने अपनी कोई करामत ना दिखाई और उधर वो असली बर्तन अपना काम दिखाता रहा कि यहाँ तक नौबत आ गई और ये शहद और बालाई का सैलाब किसी के रोके से नहीं रुक रहा। अब तो आप समझ गई होंगी कि जमींदार को शहद और बालाई रोकने का मंत्र नहीं आता था। यह सुनकर उस लड़की की माँ हंसने लगी और अपनी बेटी से बोली, बेटी, सच कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस जमींदार और इसकी बीवी ने हमारे लिए खड्डा खोदा, लेकिन ये खुद ही उसमें फंस गए। इसके बाद लड़की अपनी माँ से बोली, खैर अम्मा, हमें जल्दी से चलकर अपने उस बर्तन की खबर लेनी चाहिए। यह कहकर दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी पिछले रास्ते से जमींदार के घर पहुंची और खिड़की के अंदर से झांक कर देखा कि वही खाली बर्तन मेज के ऊपर रखा है और अपना काम किए जा रहा है। लड़की ने फौरन उस खाली बर्तन से मुखातिब होकर कहा, बैन बैन बान बान, भर गए ओंड भर गई दुकान, और साथ ही अपना हाथ उस खाली बर्तन में फेरा। ऐसा कहते ही वो बालाई और शहद रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके शहद और बालाई का सैलाब थम गया। लोगों ने उसमें फंसी हुई मुख्तलिफ चीजें निकाली और लोग वहां से गुजरकर एक खाली सड़क पर पहुंच गए और वो जमींदार और उसकी बीवी दोनों मियाँ बीवी अपने हाथ पैर मारते चिल्लाते रहे और उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी और वो यूं ही चिल्लाते चिल्लाते हमेशा के लिए खामोश हो गए। उन्हें अपनी खुदगर्जी की सजा मिल गई थी। इसके बाद गांव के लोग और वो लड़की और उसकी माँ पूरा एक हफ्ते तक गांव की सफाई में लगे रहे। जब इस काम से फुर्सत पाई तो सब गांव वालों ने एक जगह पर जमा होकर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने एक जालिम जमींदार और उसकी बीवी से निजात पाई। प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है कि जब नाजुक मजाज नवाब अपनी आन बान और इज्जत व वकार की खातिर अपनी जान से खेल जाते थे। ये ऐसे ही दो नवाबों की कहानी है, नवाब सलामत मिर्जा और नवाब राहत अली खान में कुछ अरसे से उनके बीच कुछ ऊंच नीच हुई थी, लेकिन दोनों नवाब इस कदर रख रखाव वाले थे कि उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये दोनों दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते तो बड़े इत्तेफाक के साथ मिलते और दोनों के घर वालों का मेल जोल भी अच्छा था। एक शाम जब बाजार पर रौनक था, दुकानों के आगे फलों और सब्जियों की रेडी लगी हुई थी। एक रेडी वाला अपने सारे फल फ्रूट बेच चुका था, सिर्फ एक अनार बाकी रह गया था। नवाब सलामत मिर्जा का एक मुलाजिम करम इलाही काले रंग का एक उधेड़ उम्र का मालिक था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सर पर सफेद पगड़ी और कंधे पर एक रुमाल था। जब एक अनार पर उसकी नजर पड़ी तो वह रेडी वाले से बोला, मियाँ, क्या ये एक ही अनार बाकी रह गया है? वो रेडी वाला बोला कि हाँ, ये एक आखिरी अनार बाकी रह गया है। अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम्हें सस्ते दामों पर दे दूंगा। बाजार में आज किसी के पास अनार नहीं। इसी दौरान 18-20 साल का एक कड़ियल नौजवान मुंह में खुशबू वाला पान छिपाता, हाथ में एक टोकरी लटकाता हुआ वहां पर आ गया। ये नवाब सलामत अली खान का मुलाजिम शमशाद था। करम इलाही ने रेडी वाले से पूछा कि ये अनार कितने का है? जवाब मिला 5 रुपए का। इतनी देर में वो शमशाद भी वहां पर पहुंच गया। कीमत सुनकर झट बोला, ये लो 10 रुपए और ये अनार मुझे दे दो। करम इलाही ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मियाँ शमशाद, पहले मैंने इसे देखा है और अब इसे मैं ही खरीदूंगा, चाहे मुझे दाम ज्यादा देने पड़े। वो रेडी वाले से बोला कि ये अनार 20 रुपए में मेरा हुआ। रेडी वाला हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखता रहा और एक दो राहगीर भी और उनके करीब रुक गए। शमशाद ने 50 रुपए का नोट रेडी वाले की तरफ बढ़ाया कि ये लो, इस अनार को किसी थैले में रखकर मुझे दे दो। फिर करम इलाही ने भी जल्दी से 100 का नोट निकाला और रेडी वाले की तरफ फेंका और रोबदार अंदाज में कहा कि मियाँ, तमाशा न करो और अनार मेरे हवाले कर दो। उसने अनार उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शमशाद ने उसका हाथ रोक दिया और बोला, अरे चाचा, ये अनार अभी रेडी वाले का है। मैं ये अनार इससे 300 रुपए में खरीदता हूँ। रेडी वाले को इस बात से हैरत के साथ खुशी भी हो रही थी। वहाँ पर कुछ और लोग भी जमा हो गए और वो सब लोग उन दोनों को जानते थे। करम इलाही ने रोबदार आवाज में फिर कहा कि 500 रुपया देता हूँ, ये अनार मुझे दो। फिर उस हजूम में से किसी ने कहा, अरे वाह भाई वाह, आन बान हो तो ऐसी। शमशाद बोला कि 1000 रुपए में ये अनार मैंने ले लिया। फिर हजूम में से आवाज आई, अरे ये नौजवान भी किसी से कम नहीं। करम इलाही फौरन बोल उठा कि ये अनार 2000 रुपए में हम खरीदते हैं। फिर हजूम के अंदर से आवाज आई कि ये है शेर पर सवा शेर। शमशाद बोला, मैं 3000 देता हूँ। फिर करम इलाही बोला, मैं 5000 देता हूँ। ये सुनकर हजूम में सन्नाटा छा गया।
शमशाद ने अपने माथे का पसीना साफ किया, जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और गिनकर वापस जेब में डाल लिए और फिर शर्मिंदा होकर एक तरफ को चल दिया। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने करम इलाही की पीठ ठोकी और उसकी दाद देते हुए कहा, वाह करम इलाही वाह, तुम भी किसी अच्छे खानदान के नौकर हो, तुमने अपने मालिक की लाज रख ली, वरना आज तो नाक कट जाती। करम इलाही ने 5000 रेडी वाले के हवाले किए और अकड़ता हुआ अपने मालिक के घर की तरफ रवाना हो गया, जैसे उसने कोई दुनिया फतेह कर ली हो। जब शमशाद घर पहुंचा तो उसके मालिक ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो पूछा, अरे क्या बात है भाई? वो नजरें झुकाकर बोला, हजूर बहुत दिन आपका नमक खा लिया, अब हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ से जाते हैं। ये तुझे क्या हो गया? नवाब साहब हैरान होकर बोले, पिछले महीने ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई है। हजूर बात तनख्वाह की नहीं, आज हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। फिर इसने बाजार में होने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। बस हजूर, आज बाजार में मेरी नाक कट गई। नवाब साहब का गुस्से से बुरा हाल था और गुस्से से बोले, अरे नाक तेरी नहीं, नाक तो मेरी कट गई है। वहीं से किसी को भेजता, हम पैसे भेज देते। उधर करम इलाही ने थाल के अंदर रुमाल बिछाकर खूबसूरत गुलाब के फूलों पर वो अनार सजाकर नवाब मिर्जा के सामने हाजिर कर दिया। नवाब मिर्जा बोले कि बस एक अनार। फिर उस करम इलाही ने बाजार का सारा किस्सा नवाब साहब को सुना दिया। नवाब साहब ने इत्मीनान से सारा वाकया सुना। नवाब साहब ने कुछ सोचा और फिर अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर करम इलाही के उंगली में पहना दी और गले लगाकर कहा कि वाकई ही आज तुमने हमारी लाज रख ली, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। शाम का वक्त था। नवाब सलामत मिर्जा ने करम इलाही से कहा, इस अनार को जरा सलीके से नवाब राहत अली खान के यहाँ दे आओ। करम इलाही ने वो अनार यूं का यूं थाल में सजा हुआ हाथ में उठाया और जब घर से निकलने लगे तो नवाब सलामत मिर्जा ने कहा कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके खादम ने ये हकीर सा नजराना पेश किया है और निहायत अदब से अर्ज करना कि इसे कबूल फरमा कर मुझे इज्जत बख्शी जाए। नवाब राहत अली खान गुस्से से कब कपा रहे थे, उन्हें किसी तरह भी सुकून नहीं आ रहा था। वो गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। तमाम नौकर चाकर भी परेशान थे कि ये आज क्या हो गया, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में न थी। फिर कुछ ही देर में करम इलाही आ गया। करम इलाही ने वो थाल नवाब साहब के सामने पेश की और अपने मालिक का सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो नवाब साहब कुछ देर तक सोचते रहे। फिर नवाब साहब उठकर खुद कमरे में गए और एक लफाफे में 10,000 रुपये लपेट कर लाकर करम इलाही को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है, अपने मालिक को हमारा सलाम कहना और हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि नवाब राहत अली खान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और एक पर्चे पर यह बात लिख दी कि सरे बाजार मेरी इज्जत बदनाम हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। फर्क ये है, किसी आलिम से किसी ने पूछा कि जाहिल और आलिम में क्या फर्क है। उन्होंने जवाब दिया कि जाहिल किसी इल्म को नहीं जानता क्योंकि उसने कभी इल्म को नहीं देखा, लेकिन हाँ आलिम जाहिल को जानता है क्योंकि खुद वो जाहिल रह चुका है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।